Hello, viewers. Welcome to yet another episode of Health with Melody Strings. This is Seema, your food guide, your nutritional guide, your alarm clock, one of your reminders, your reminder calendar. Awareness is all over. We all know about things, but there should be always someone who will remind you of the things. I'm here to remind you. My mission is to train and educate homemakers, those innocent and ignorant homemakers who cook food in their kitchen innocently and ignorantly, and they somewhere cannot help their family members to get rid of various diseases. Here, I am here to discuss that many of us can bring changes in our lives, is the homemaker who can bring changes in the lives, and they can prepare medicinal food in their kitchen. So this is Seema. Hope every one of you know me by now. Those who do not know, my name is Seema. My hobby is to educate people about health and healthy food. Welcome all of you to yet another episode of healthifying yourself, healthifying your ways of living, healthifying your ways of cooking, healthifying yourself with the healthy choices you make in your kitchen. Welcome all of you. Welcome to this beautiful session. This is my fourth session here, and I hope to continue till I can. Thank you all of you for all supporting, and thank you all of you for taking your time to listening to your own health. So today I am bringing a very sensitive topic, a topic which most of the women hide, a disease, a lifestyle disorder. Most of the women don't want to talk about it. Most of the women don't want to go to doctors to show them. So the topic is piles, fissure and fistula. Yes. We should be thankful to God in every respect. We should be thankful to God for giving us this body, for giving us this brain to think about and choose the right choices. I'm also here to encourage people to read all the nutritional information on the back of the packets. I request everyone, before going to malls, before going to shopping complexes, when you pick up packets for our kids and for our family, please go through the nutritional information. There are strict instructions from Health Ministry that every food should be given proper in nutritional information. Nothing is hidden on the packets. All the information are there. It's our choice, it's our wisdom, it's our diligence which helps us in choosing the packets. Awareness is all over the internet. All we need is to use our brain. So coming to today's topic, piles. नमस्कार सबको, मेरा नाम सीमा है. मुझे अच्छा लगता है सबको एजुकेट करना अपने हेल्थ के बारे में. सो टुडेज़ टॉपिक, नमस्कार सबको जो भी देख रहे हैं. टुडेज़ टॉपिक as discussed earlier is piles, fissure, fistula, a very painful condition, a condition which you are only responsible to bring in your life, a condition where you cannot even sit properly, where you cannot even walk properly. This is a very, very, very dangerous situation. Sometimes it goes very dangerous, and sometimes we feel very shy to discuss it with our doctors and show it, discuss it even among our family members. What to do? What are the reasons? What are piles? What is fissure? What is fistula? I'll explain you in very simple layman's language. So the first thing first is that piles, as you know, it's a pile of thing, you can say. We have veins near our rectal canal or near our anal canal. When we get dehydrated, when we do not take too much of water, your appropriate amount of water, the area there gets too much dehydrated, and there is prolapsing, or internally a pile of veins, they get tense and they make this pile kind of a thing. These are called hemorrhoids.
Hemorrhoids are of three types. Or internal hemorrhoids, these are very dangerous, painful condition, very painful if they are internally. They sometimes there's a bleeding, a lot of bleeding. And external hemorrhoids or prolapsed piles, are also the swollen veins, and external hemorrhoids are the veins which are swollen outside and they are protruded outside. This condition is also very painful. All the conditions are painful. And second is fissures. Fissures are the cuts around the anal canal. These are cuts whenever you go to toilet, and after passing the stools, when you come back, you feel pain throughout the day. At least for 5 or 6 hours you feel very painful and discomfort throughout. And third one is fistula. Fistula is yet another, it's called bagandar in Hindi. So it's very painful condition, equally painful condition. This also is very painful, and pus formation with bleeding, with discomfort, everything in this. तो ये होता क्यों है और इसे कैसे हम बच सकते हैं इस कंडीशन से? सबसे पहले रीज़न कि वाई दिस कंडीशन, वाई मी, why it happened to me. A question arises all the time, why this condition happened to me, why God chose me for this. God doesn't choose you. This is the condition which you have brought to you by yourself. Yes, only you are responsible for this condition. When we do not practice the things which are meant to be practiced by human beings, we don't drink enough water, we don't eat fiber rich food, we have sedentary lifestyle, and we blame God. तो सबसे पहले जो भी इंसान, सबसे पहले मैं एक संस्कृत का एक श्लोका बोलना चाहती हूँ, न तस्य रोगा न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य जयोगा. जो योग करेंगे उसको न कभी न तस्य मृत्यु न जरा न रोगा, न कभी मृत्यु उसको मांगनी पड़ती है भगवान से. जो परफेक्टली योग करने वाले होते हैं, जो परफेक्टली हर एक रूल फॉलो करते हैं, और उसको ना तो कोई रोग होता है न बुढ़ापा आता है. चलिए आगे बढ़ते हैं. मैं बिलीव करती हूँ स्ट्रांगली, आई बिलीव इन प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर. आई बिलीव इन वासुदेव कुटुंबकम. आई बिलीव इन सर्वे भवन्ति सुखिनाम, सर्वे संतो निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तो मा कश्चित् दुख भावे. मेरा मन है कि किसी को भी दुख न होवे, और ये बहुत बड़ा दुख है अगर किसी को पाइल्स, फिशर या फिस्टुला होता है. बहुत बड़ा दुख होता है, वो फैमिली में भी नहीं बोल पाता है. तो yes, thank you all of you who are commenting. Thank you so much who have joined. I will take up all the queries. I will respond to you later. My network is poor or your network is poor. I'll check. No, my network is ठीक. So I'll continue. So सबसे पहले let's discuss the reasons. मैं सबसे पहला रीज़न, हमको डॉक्टर्स बोलते हैं कॉन्स्टिपेशन इज़ द रीज़न, मगर मैं बोलती हूँ कॉन्स्टिपेशन इज़ नॉट द रीज़न. कॉन्स्टिपेशन इज़ अ सेल्फ ब्रॉड थिंग. द रीज़न इज़ वी डोंट ड्रिंक वाटर. We drink water, we take out bottles from a refrigerator, we open the lids and we just do this. This is not drinking of water. This is not called water drinking. If you keep yourself hydrated, कोई भी वेसल, कोई भी वेन आपकी स्ट्रेन्ड फील नहीं करेगी, आपकी बॉडी रिलैक्स रहेगी. फर्स्ट थिंग फर्स्ट इज़ ड्रिंकिंग वाटर. हेयर इन बंगाल ये लोग बोलते हैं जल खाबो, एंड दे आर राइट. लोग हंसते हैं इन पे कि जल खाबो माने की. आई अंडरस्टूड इट. यस, जल खाबो माने सब जल खाओ, पियो मत कुछ भी. You need to drink water so that the saliva gets mixed in your water. Our digestion starts in our mouth. This saliva gets mixed in your water you drink. You have to drink the water by sips when you are drinking water. If you are drinking water to satisfy your this thing only, प्यास को बुझाने के लिए, the thirst को बुझाने के लिए, वो अलग चीज़ है. मगर जब आपको पानी बॉडी की रिक्वायरमेंट के लिए पीना है तो मेहरबानी करके आप हर कोई एक ट्रैक रखो पानी का. मॉर्निंग में जो 4 गिलास पानी पी ले उसको कभी ज़िंदगी में ना पाइल्स होंगी, ना फिशर होगा, ना फिस्टुला होगा. ये उसकी ज़िंदगी में कभी नहीं आएगा. ये सिंपल नॉर्मल ल्यूकवार्म वाटर
अगर जो मॉर्निंग में पिए रेगुलर, एक विद कंटिन्यूस हैबिट, विद कंटिन्यूस प्रैक्टिस हर कोई पी सकता है। कोई इसमें कोई खर्चे की बात नहीं है। घर का पानी है, अपना एक्वागार्ड लगा हुआ है, उसमें से पानी ले लो। वैसे भी एक्वागार्ड से सारे मिनरल्स तो निकल ही जाते हैं पानी के। बहुत कुछ चीज़ें हैं, हम इस दुनिया में रह रहे हैं, बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम में बहुत कुछ आया है। ओके, सो सबसे पहले होता है पानी पीना। 4 गिलास आप पानी पी लीजिए। और बहुत सारी चीज़ें हैं, आप हर टाइम सड़े सड़े से रहते हैं, कुछ लोग खुश नहीं रहते हैं, हंसते नहीं हैं और डिप्रेस्ड रहते हैं, फिर जेलसी होती है। ये सब कंडीशंस भी ऐसी होती है जो रिस्पॉन्सिबल होती है आपके बॉडी को स्ट्रेन देने की, आपकी बॉडी में वाटर ये करने की, पानी की कमी लाने की, और स्ट्रेस होता है। और दूसरी बात ये है, जो इंडियन टॉयलेट्स थे पहले, जो इंडियन टॉयलेट्स होते थे, दैट वुड दे ऑलवेज सपोर्टेड दिस सिस्टम ऑफ एवैक्यूएटिंग योरसेल्फ इन द मॉर्निंग। तो वो एक प्रेशर बिल्ड करता था, वो एक प्रेशर पॉइंट, वो सिस्टमेटिक था, वो एक प्रेशर पॉइंट पे ध्यान देता था और एवैक्यूएशन अच्छे से हो जाता था। और आज के सिस्टम में जो इंग्लिश सिस्टम है, दैट्स ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस कंडीशन। तो फिर हम प्रोलॉन्ग्ड बैठते हैं वहाँ पे टॉयलेट्स में, अपनी मोबाइल लेके, अपना न्यूज़पेपर लेके, कुछ लोग तो किताबें भी पढ़ लेते हैं वहाँ पे। वो जो उस टाइम पे जो वो प्रेशर पड़ जाता है उस जगह पे, दैट्स ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस कंडीशन, पाइल्स और फिशर। सो थर्ड इज़, आप हमेशा गुस्सा में रहते हैं, आप हमेशा हर एक बात पे झगड़ा करने लगते हैं, तो दैट कंडीशन विल ऑल्सो लेड यू टू पाइल्स। और एक बात है, हम सब में, हम लोग को जब खांसी ज़ुकाम होता है या बुखार होता है, हम जल्दी से एंटीबायोटिक्स खा लेते हैं। हम जब एंटीबायोटिक्स खा लेते हैं, एंटीबायोटिक्स का मतलब ही है कि वो हमारी बायोटिक्स के एंटी हो जाते हैं। तो उसमें से क्या होता है, गट हेल्थ पे बहुत बड़ा प्रभाव डालती है। हमारे जो प्रोबायोटिक्स है उसको बहुत इम्पेयर करती है हमारी एंटीबायोटिक्स, इफ़ नॉट टेकन अंडर सुपरविजन, इफ़ नॉट टेकन अंडर डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन। वो हम जनरली हम तो एजिथ्रिल, जैसे बच्चे टॉफ़ी खा लेते हैं वैसे हम लोग एजिथ्रिल खा लेते हैं। हम 3 दिन का कोर्स कंप्लीट करते हैं, फिर हम फिर से 3 दिन का कोर्स या 5 दिन का कोर्स कंप्लीट करते हैं, बीच में छोड़ देते हैं। दैट बैडली अफेक्ट्स योर लंग्स, योर दिस गट, योर गट सिस्टम, योर गट बैक्टीरिया, वो भी मर जाते हैं उसमें। एंटीबायोटिक्स लेके वो भी मर जाते हैं। मेक श्योर यू टॉक टू योर डॉक्टर, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, नोट इट डाउन समवेयर, नो वन विल टेल यू। मेक श्योर दैट while taking antibiotics, please discuss with the doctor that what probiotic you need to take along with the antibiotics. The most important probiotic in our homes is dahi, is yogurt you can take along with your food, so that is a probiotic. Talk to your doctor, do I need any and probiotic? There are various forms of lactobacillus, streptococcus और बहुत सारे हैं जो मार्केट में अवेलेबल है सैशे फॉर्म में। जब भी आप एंटीबायोटिक लो, अब ये मेरी बात सुन के ख़रीदने मत लग जाना, जब भी आप एंटीबायोटिक लो आप इससे लो, उससे आपकी गट हेल्थ अच्छी रहेगी और वहाँ का एरिया बहुत साफ़ रहेगा और वहाँ के बैक्टीरियाज ज़्यादा हो जाएंगे। थर्ड थिंग इज़, आजकल जो ये डाइट लोग करते हैं, बहुत तरीके के, मैं नाम नहीं लूँगी, बहुत तरीके के डाइट करते हैं स्लिम होने के लिए। देखो, स्लिमिंग एक प्रोसेस है। आप मोटे तो बहुत जल्दी नहीं हुए थे, मोटे भी आप, एक जर्नी थी आपके मोटापे की टुवर्ड्स, और आपको स्लिम होना भी एक जर्नी रहनी चाहिए। वो स्लिम भी आपको धीरे धीरे ही होना पड़ेगा। आपको वही प्रोसेस, आपको अपने किचन के नॉर्मल खाने से, घर के खाने से आप अपना वेट भी रिड्यूस कर सकते हैं। तो और एक रीज़न है, एक्सेसिव टी और कॉफ़ी हम लोग पीते हैं। सुबह उठते हैं बहुत लोग चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं,
अब होता क्या है, क्या रीज़न क्या है चाय और कॉफ़ी पीने से, उससे क्यों होता है? जब हम चाय और कॉफ़ी पीते हैं उससे ये होता है कि चाय और कॉफ़ी को हज़म करने के लिए बॉडी में पानी चाहिए। तो जब हम पानी भी नहीं पिएंगे, ज़्यादा चाय कॉफ़ी पीते रहेंगे तो क्या होगा, सिस्टम तो सिस्टम है, बहुत इंटेलिजेंट है हमारा सिस्टम, वो पानी ले लेता है। जब वो पानी ले लेता है इट लीव्स अस डिहाइड्रेटेड, हम डिहाइड्रेटेड हो जाते हैं, और विच लेड्स टू द कंडीशंस लाइक दिस, पाइल्स, फिशर एंड fistula. These are just the conditions, nothing to be shameful about. If you are in such condition, go to your doctor so that you can save yourself a step earlier. So third है wrong order of eating. नेक्स्ट है रॉन्ग ऑर्डर ऑफ ईटिंग। व्हाट्स द ऑर्डर ऑफ ईटिंग? ऑर्डर ऑफ ईटिंग है आपको एक प्लेट दी जाती है, लंच प्लेट, या आप शादी में होते हैं आपको एक लंच प्लेट दी जाती है, आपको उसमें सैलड भी है, हलवा भी है, चावल भी है, रोटी भी है, सब्जियां भी है, फल भी है। हम लोग क्या करते हैं, हम कुछ भी कभी भी खा सकते हैं, मगर इसका एक ऑर्डर होना चाहिए खाने का। आप सबको पता है, अवेयरनेस इज़ ऑल ओवर, वी नो, बट हाउ मेनी ऑफ वी रिमेंबर while eating? So while eating it should be the salads should be taken first, then the heavier food, the main course, and last में जो थोड़ा सा heavy food होता है, मिठाई होती है, वो एकदम last में। this should be the order of having food. तो उसमें क्या होता है, what is the reason? सी फॉर एग्ज़ाम्पल आपने सैलड खाया, आपने खीरा, टमाटर, प्याज, ये सब सैलड खा लिया, उससे क्या होता है, उसका जो हर एक जो हमारी फूड है, हर एक फूड का एक डाइजेशन का एक टाइम होता है। जो हैवी फूड्स होते हैं दैट गेट डाइजेस्टेड इन 2 hours, इट टेक्स टाइम। तो जो लाइट फूड होते हैं, जैसे अनकुक्ड फूड होता है, रॉ फूड होता है, हाईली सॉल्युबल फाइबर फूड होता है, दैट टेक्स टाइम, से अबाउट 20 minutes और 40 minutes इट टेक्स दिस। जब हम ये सारा कुछ एक साथ खाते हैं, आप खुद सोचो, मैं बहुत बड़ी बात बोल रही हूँ, जब हमने खीरा भी खाया, ककड़ी भी खाई, चावल भी खाया, हलवा भी खाया, एक साथ खा लिया, तो अंदर एक जंग मच जाती है, दे फाइट। वो समझ ही नहीं आता है कौन पहले जो इजीली डाइजेस्टेबल फूड आइटम होता है, दैट वांट्स टू गेट, दैट हैज़ नाउ डन द प्रोसेस। स्टमक है, स्टमक में जो प्रोसेस है वो ख़त्म हो गया, इट वांट्स टू पास डाउन टू योर इंटेस्टाइन्स, बट your heavy food, your halwa, your batta, your sabzi, your rogan josh is stopping it. वो उसको नहीं जाने दे रहा, बिकॉज उसको अभी डाइजेशन में टाइम लगेगा, मगर उसने उसको ब्लॉक कर रखा है। एक खीरा है, रोगन जोश ने ब्लॉक करके रखा है, रोगन जोश बोलता है मैं तो अभी डाइजेस्ट नहीं हुआ भैया, मुझे अभी टाइम लगेगा, तो वही रह। अब जब ये खीरा, प्याज, टमाटर वही रह जाता है तो वो एसिडिक बन जाता है, वो डाइजेस्ट नहीं होता है, वो उसको सड़ा देता है, वो सड़ जाता है बेचारा, उधर पड़े पड़े सड़ जाता है। तो जिसकी वजह से हम तुरंत मैरिज पार्टी से आते ही बहुत सारे लोग तुरंत अपने कपड़े खोलते हैं और टॉयलेट में चले जाते हैं। दिस इज़ कॉल्ड इरिटेबल बाउल सिंड्रोम और कोलाइटिस और IBS। तो ये भी एक ऐसी कंडीशन है जो भी हम खुद इनवाइट करते हैं अपने लिए, हमने चिट्ठी लिख के उसको इन सब कंडीशंस को बुलाया हुआ होता है। Thank you all of you who are watching. You have taken your time from your busy schedule for your own health. I'm just reminding you, I'm not teaching you anything, this is just a reminder to all of you. I care for all of you. I love sharing this information with everyone as a reminder. I'm not teaching anyone. The the next thing is sitting for prolonged time. बहुत देर हम बैठे ही रहते हैं, मज़ा आ रहा है, गेम खेल रहे हैं, बैठे ही रहते हैं। बैठे रहने से जब वहाँ कोई एक्सरसाइज ही नहीं होती है तो उस वजह से भी हमें ये कंडीशन का सामना करना पड़ता है। और नेक्स्ट 10th इज़ ओबेसिटी। जो लोग मोटे होते हैं उनको ज़िंदगी में कभी ना कभी कंडीशन आएगी ही, अगर वो सारी कंडीशंस भी कर रहे हैं, लाइक पानी नहीं पी रहे हैं, ज़्यादा चाय कॉफ़ी पी रहे हैं, फिर नाश्ते के साथ सांभर इडली भी ले रहे हैं, चाय भी साथ में ही ले रहे हैं। नाश्ते के मैंने पिछले भी वीडियो में बोला था, पहले अपना नाश्ता खा लीजिए। चाय पीना बुरा नहीं है, चाय में भी बहुत सारे गुण होते हैं,
जो आपको मूड एलिवेट करता है, जो आपको सर दर्द आपको लगता है, वैसे तो कैफ़ीन ही होता है। चलो अब आपकी खुशी के लिए मैं बोल देती हूँ, अच्छा है, मगर चाय बनाने का तरीका हमारा अच्छा नहीं था। हमारी इंडिया में चाय थी ही नहीं, ये तो अंग्रेज़ों ने ला दी हमको चाय। चाय कहाँ थी पहले? तो चलो अब कोई नहीं, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ है जो चाय पे डिपेंडेंट है, पियो, बहुत सारे छोटे छोटे दुकानदार पियो, मगर अपना नाश्ता ख़त्म करो, उसके आधे घंटे बाद अब चाय पियो अपना मज़े से। मैं और मेरी तन्हाइयाँ, मैं और मेरी चाय का कप। तो ओबेसिटी एक रीज़न है, और एक रीज़न है डीप फ्राइड थिंग्स। जब आप डीप फ्राइड खाते हैं, प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, स्पाइसी फूड खाते हैं, उसके साथ ज़रूरी आपको पानी पीना है, बल्कि उस दिन आपको पानी की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी। तो ये एक रीज़न है। तो रीज़न तो बहुत सारे हैं, ये तो कुछ रीज़न है हो गए। स्ट्रेसफुल रहते हैं, हंसते खेलते रहा करो, गाना गाते रहा करो, मज़े में रहा करो, तो कुछ नहीं होगा। तो अपने भगवान पे विश्वास किया करो, तो कुछ भी नहीं होगा। यस, स्पेशली व्हेन इट इज़ नैनीताल। नैनीताल के बाद जब खाया, फिर 2 दिन घर में कुछ नहीं खाना चाहिए, खिचड़ी या दही चावल खाना चाहिए। बस वो इंसान को अंदर ही गिल्ट फील होना चाहिए, मैंने अब। और इट्स अ वेल सेइंग इन आयुर्वेदा दैट एक दिन का, ये मैं बहुत बड़ी बात कह रही हूँ, ये बोलते हैं शादी बाड़ी का, शादी वाले घर का एक दिन का खाना ज़िंदगी के 5 दिन कम कर देती है, क्योंकि इस तरीके से वो बना हुआ होता है। अब हम चलते हैं रेमेडीज़ पे, क्योंकि समय बहुत कम है। अगर मैं बोलती रहूँगी तो फिर मैं रीज़न्स ही बोलती रहूँगी। But post nene have warm water again to digest the nail. Yes, absolutely right. And try to include fiber that day. Try to include a lot of fiber. I will discuss about it. I will discuss it in the remedies. तो रेमेडीज़ हो गई। सबसे पहले रेमेडी मैं सबको बोलती हूँ, पानी 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 पानी। पानी ही है रेमेडी, सब चीज़ों की रेमेडी पानी है। आप पानी का ख्याल रखो, पानी को ट्रैक करो, मैंने कितना पानी पिया। अपनी घड़ी में आप बहुत कुछ, आप बहुत स्मार्ट है, आपने अपनी बहुत स्मार्ट वॉचेज़ है आपकी, आप एक टाइम पानी का भी अलार्म लगा लो, तो एक घंटे के बाद एक गिलास पानी पी लो, तो वो हो गया। और पानी पीने का एक सिस्टम है, सो दैट योर बॉवल इज़ कम्प्लीटली क्लीन्ड। In the morning, take 2-3 glasses of water. Take at least 4 glasses of water. 4 glasses of water are good. So those 4 glasses of water you have to drink while sitting on your toes. Your toes should be like this. You have to drink water while sitting on your toes, so that this pressure point, these are the pressure points of the intestines. This pressure point and your thighs will be against your intestines, and it will help you clearing your bowel. completely clearance हो जाता है bowel का। और इसको हम बोलते हैं उकड़ू बैठना, उकड़ू बैठना, सर्च उकड़ू बैठना। और पुराने ज़माने में क्या, हमारे बचपन में ही हमको टीचर मुर्गा बनाते थे। आज कोई मुर्गा बन के देखे? छोटे बच्चे भी नहीं मुर्गा बन पाते हैं, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है ही नहीं बच्चों में कि वो मुर्गा बन पाए। तो हमारे टीचर हमको मुर्गा बनाते थे। दैट वाज अ एक्सरसाइज, दैट वाज अ वेरी वेरी गुड एक्सरसाइज। उससे सब कुछ ठीक हो जाता था बच्चों का। तो दूसरी बात आ जाती है, यस, च्यूइंग योर फूड। अपने खाने को जल्दी जल्दी मत खाओ। हम लोग बचपन में ही, मैंने एक वीडियो भी अपलोड किया है पहले भी, हम लोग बच्चों को बोलते हैं जल्दी जल्दी खाना खा लो बेटा, जल्दी जल्दी, फर्स्ट कौन आया, जल्दी जल्दी। बचपन से ही मैं किसी को ये नहीं सिखाती हूँ कि तुम जल्दी खाना खाओ, आराम से खाना खाओ। खाना खाने के लिए हम इतना मारा मारी कर रहे हैं, खाना खाने के लिए हम इतना कुछ कर रहे हैं। मैं समझती हूँ अगर खाना नहीं खाना होता, लाइफस्टाइल, हमें अपनी लाइफस्टाइल अच्छी नहीं रखनी होती है, हम में से कोई काम ही नहीं करता। तो खाना आराम से खाओ, खाने के लिए टाइम निकालो, खाना ऑर्डर से खाओ, ऑर्डर ऑफ ईटिंग फूड फॉलो करो। खाने के टाइम खाना ही खाओ, बस तुम कुक्ड फूड के टाइम कुक्ड फूड खाओ, उसको आराम आराम से खाओ, धीरे धीरे चबा चबा के खाओ, टाइम लेके खाओ। अपने गैजेट्स दूर रखो, अपने टीवी स्विच ऑफ करो, देखो क्या है खाने में, आज क्या बना है, उसको ऑब्जर्व करो। जब मैं छोटी थी, क्लास 5 में अराउंड, मेरी टीचर ने बोला था वी शुड च्यू आवर फूड 32 टाइम्स। व्हेन आई आस्क्ड हर अ क्वेश्चन, व्हाई मैम, मैं बचपन से बहुत, आई ऑलवेज बिलीव्ड, माय फादर इज़ अ टीचर एंड ही हैज़ ऑलवेज टॉट मी टू आस्क
वाई, व्हेन, वेयर, ये आपके दोस्त है ज़िंदगी में. तो आई आस्क्ड हर वाई मैम. तो शी सेड वी हैव 32 टीथ, तो 32 टाइम्स हमें च्यू करना चाहिए. दो हर लॉजिक वॉज वट एवर द लॉजिक वॉज, बट शी वॉज एब्सोल्युटली राइट इन सेइंग दैट वी शुड च्यू आवर फूड 32 टाइम्स. दो ये बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा 32 टाइम्स, बट दोज who want to lose their weight, who want to really be satiated with the food they have been served, they need to chew their food properly and they need to focus on their food. अपने जो थाली है उसमें क्या क्या सर्व किया गया है, ये नहीं कि जिस दिन रोगन जोश बना है तो बस उसी दिन थाली को निहारेंगे. जिस दिन दाल, बंद गोभी, आलू, जो कुछ भी बना है उस दिन भी थाली को प्यार से देखो और उसको प्यार से भगवान का शुक्रिया करके खाओ और चबा चबा के खाना खाओ. बहुत ज़्यादा उससे क्या होता है, हमारी बॉडी ब्रेन को सिग्नल दे देती है कि इस बंदे ने खाना खा लिया. हम ज़्यादा खाने से भी बच जाते हैं और जब हम ज़्यादा नहीं खाते हैं तो मोटापे से भी बच जाते हैं. तो दिस इज़ कॉल्ड ईटिंग विद माइंडफुलनेस, कीपिंग ऑल योर गैजेट्स अवे, कीपिंग ऑल योर ऑफिस टेंशंस अवे, कीपिंग एवरीथिंग अवे. आजकल मैं कॉरपोरेट से भी यही मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि प्लीज़ आप अपने वर्कर्स को, आप अपने एग्जीक्यूटिव्स को एक टाइम दे दो खाना खाने का. एटलीस्ट आधा घंटा रखो, 2 से 2:30 बजे तक रखो, ताकि ये लोग खाना खा सके बिना कॉल अटेंड किए हुए. इनको कान में कॉल चल रही होती है, क्या सर्व किया कुछ पता नहीं चलता है, क्या खाया, अगर शाम को पूछेंगे क्या खाया कुछ मालूम नहीं होता, खाना क्या बना था. थर्ड थिंग इज़ include roughages, include fiber in your food. फाइबर वी ऑल नो, फाइबर मैं ऐसे समझाती हूँ, फाइबर जैसे आप अपने घर की सफाई करते हैं झाड़ू से, आप अपने घर की सफाई करते हैं, पोंछा लगाते हैं या तेज़ पानी डालते हैं, इससे सफाई होती है, वैसे हमारी शरीर की सफाई ये फाइबर करता है. ये फाइबर हमारे शरीर के लिए झाड़ू है. दिस इज़ अ ब्रूम फॉर योर आर. दिस फाइबर takes out our excess fat, this fiber takes out our cholesterol, this fiber takes out our बहुत, एक होता है सॉल्युबल फाइबर, एक होता है इनसॉल्युबल फाइबर. जो सॉल्युबल फाइबर होता है जैसे खीरा वीरा में, वो डायबिटिक जो पेशेंट्स होते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है. जो इनसॉल्युबल फाइबर होता है वो कॉन्स्टिपेशन को होने नहीं देता है, वो बन जाता है हमारे रीज़न या हम मॉर्निंग में फ्रेश हो जाते हैं. तो ये इंक्लूड करो फाइबर. मेक अ हैबिट ऑफ हैविंग 1 मील, रिप्लेस योर 1 मील विद योर फ्रूट्स. आप चाहे वो नाश्ता करो रिप्लेस, या तो आप इवनिंग का एक स्नैक रिप्लेस करो इससे विद फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. उसको अच्छे से रेनबो की तरह अपनी प्लेट सजाओ और बैठो बैल्कनी में खाओ. अभी तो विंटर्स है, धूप में खाओ. तो इंक्लूडिंग रफेजेस, मगर इसमें बहुत बड़ा ध्यान रखना है, इसको सड़ाना मत. इसको आप कच्चा पक्का एक साथ मत खाना, जूसेस और फ्रूट्स एक साथ मत खाना, चाय कॉफ़ी जूस एक साथ मत खाना. थर्ड प्रैक्टिस है बहुत ही इम्पॉर्टेंट, आयुर्वेद में पता नहीं किसी को पता होगा कि नहीं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस है मूल बंद लगाना. मूल बंद इज़ दैट एरिया ऑफ दैट एनल एरिया और एनल एरिया, उसकी जितनी भी मसल्स है, यू कैन कंट्रोल योर सेल्फ. हमारी बॉडी में चक्र होते हैं, 9 चक्र 9 द्वार. तो वो चक्र को कंट्रोल करना, जस्ट होल्ड दैट एंड ट्राई टू अपलिफ्ट इट. तो वो प्रैक्टिस करते करते आ जाता है. ये मूल बंद जो है वो बहुत शक्तिशाली बना देता है इंसान को. अगर हम 10 मिनट भी इसको प्रैक्टिस, 10 मिनट तो बहुत हो जाता है, 1-2 मिनट भी इसको रेगुलरली प्रैक्टिस करेंगे, दिस विल ऑल्सो हेल्प अस इन दिस कंडीशन कॉल्ड पाइल्स, फिशर और फिस्टुला. एंड थर्ड इज़ च्यूइंग गम. मैं ये बहुत लोगों को बताती हूँ जिनका एसिडिटी होती है, जिनको ब्लोटिंग होती है. दीज आर ऑल द रीजंस. एसिडिटी, ब्लोटिंग से ही ये सब होता है, क्योंकि उन्होंने पानी नहीं पिया होता है ठीक से, पानी की अपनी मात्रा ठीक नहीं रखते हैं. तो मैं बोलूँगी कि च्युइंग गम आप लिया करो, मगर जो डायबिटिक्स है उनको च्युइंग गम नहीं लेना चाहिए. और जिसको एसिडिटी होती है, जिसको ब्लोटिंग होती है, उसको खाने के बाद च्युइंग गम लेना चाहिए. च्युइंग गम भी यही मेरा फंडा है कि च्युइंग गम जब हम खाते हैं तो हमारा जो सलाइवा होता है, हमारी जो मुंह की लार होती है, वही एक बहुत बड़ा डाइजेस्टिव एंजाइम है, वही एक बहुत बड़ा हमारा एक ऐसा एंटीसेप्टिक है जो हमारी बॉडी की रक्षा खुद करता है. आवर बॉडी हैज़ द एबिलिटी टू रिपेयर इटसेल्फ. हमारी बॉडी में सेल डिवीजन होते रहते हैं. हमारे जो ब्लड सेल्स हैं, हमारे जो दूसरे सेल्स हैं, जो जिस शरीर से हमने जन्म लिया होता है, अंत तक वो नहीं रहता है, ये रिपेयरिंग होती है. आपने देखा कट्स और वॉन्ट्स में अपने आप सेल डिवीजन होता रहता है, हमें फिर से
से नया स्किन मिलता है, ये सारा शेड ऑफ हो जाता है। स्नेक का तो दिखता है, हमारा नहीं दिखता है। हमारी ब्लड सेल्स 103 महीने रहती है, 3 महीने के बाद। तो कहने का मतलब ये है, कहने का तात्पर्य ये है कि हमारी बॉडी में शक्ति है, हम अपने आप को रिपेयर कर सकते हैं, प्रोवाइडेड यू फॉलो ऑल द प्रैक्टिसेस विच आर देयर फॉर curing ourselves. Fourth thing is don't be sedentary. आप sedentary मत रहें। आप बात बात में बच्चों के साथ खेलें, डांस करें, निकले, नीचे जाएं, वॉक करें, या वॉक करना बोरिंग लगता है तो डांस करें। डांस करने में बहुत मज़ा आता है, मैं तो बहुत डांस करती हूँ अपने बच्चों के साथ, तो बच्चे भी खुश हो जाते हैं और बड़े भी खुश हो जाते हैं। तो you are already slim trim, don't use lemon. Who is slim trim? I'm not slim. खाली पानी नहीं पिया जाता है। ओके रितु जी, आई विल टेल यू, खाली पानी नहीं पिया जाता, यू आर राइट। दिस इज़ फॉर रितु पंडिता। दिस थिंग मोस्ट ऑफ द लेडीज़ या मोस्ट ऑफ द पीपल हैव टोल्ड मी एंड आई हैव हेल्प देम। रितु पंडिता जी, फॉर यू, खाली पानी नहीं पिया जाता, वॉमिटिंग फील होती है। या राइट, वॉमिटिंग फील होती है, अच्छा नहीं लगता है। दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन रितु जी हैज़ रेज्ड। आई एम सॉरी, अगर और भी कोई क्वेश्चन है मुझे अभी बता दीजिए संजय जी, अगर किसी और ने ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा है तो आई विल बी वेरी लकी टू रिप्लाई। रितु जी, खाली पानी नहीं पिया जा सकता। आप एक काम किया करो, आप रात को पानी में सौंफ डाल दिया करो। सौंफ हम सब के घर में है, धनिया जो साबुत धनिया होता है वो डाल दिया करो, और मॉर्निंग में वो पानी पिया करो। मेथी डाला करो, मॉर्निंग में वो पानी पिया करो। आप अपना 4 गिलास पानी, बच्चों को भी आदत डालो, आपको इतना मज़ा आएगा। अगर आप एक साथ पानी नहीं पी पाते हैं, गटक गटक के, आप सिप्स से पानी पिया करो। होप दिस विल हेल्प। आप कल ज़रूर ये करना और देखना। आपने बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा, ये तो मेरे से रह ही गया था। थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग दिस ब्यूटिफुल क्वेश्चन। यस, आप सौंफ डालो, आप पानी का टेस्ट बदलो, तो आप ज़रूर इसको, आप चाहे तो सौंफ डालो, आप जीरा डालो। मैंने बहुत सारी रील्स शेयर की है मेरे हिट्स एंड ट्रायल्स ऑफ सीमा, जो मेरा फेसबुक अकाउंट है, पेज है, मैंने उस पर बहुत सारी रील्स शेयर की है, जिससे आप पानी को और स्वादिष्ट बना सकते हो। बल्कि मेथी का पानी इतना अच्छा लगता है, सौंफ का पानी इतना अच्छा लगता है। जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है उनको हमेशा धनिया का ही पानी पीना चाहिए। जो साबुत धनिया होता है वो पानी में भिगा के रखना चाहिए, जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है। आई एम ऑन अ जर्नी ऑफ, आई वाज टेकिंग 150 mcg ऑफ थायरोनॉम। मैंने धीरे धीरे रिड्यूस किया, खुद ही टेस्ट कराए, खुद ही उसको टेपरिंग किया, धीरे धीरे करके। आई एम ऑन अ जर्नी टू से अलविदा टू माई थायराइड विद द ब्लेसिंग्स ऑफ ऑल ऑफ यू, विद द ब्लेसिंग्स ऑफ माई पेरेंट्स। I hope very soon I will be able to reach to this goal. You're welcome, Ritu. So third is your food. Some additional information on food जो particularly इस रोग के लिए बने हुए हैं। अब बिलीव करो, मैंने अपनी फैमिली मेम्बर्स को ये रोग जीते हुए देखा है। मुझे खुद प्रोलैप्स पाइल्स थे एंड आई रिवर्स देम बिकॉज मुझे क्यों हुआ था, देयर वाज अ कंडीशन इन अ फैमिली, बिकॉज बहुत स्ट्रेस हो गया था किसी वजह से, बहुत देयर टू मी वो चीज़ थी, नॉट टू डिस्क्लोज हियर। तो उस वजह से स्ट्रेसफुल हम रहने लगे और ये हो गया ये कंडीशन, एंड आई हैव रिवर्स दैट कंडीशन। दैट्स वाई मैं दमखम रखती हूँ सबको बोलने के लिए कि you can, yes, you too can. When I can, you too can. The foods I used is मुनक्का। हमारे पास किशमिश होती है, ड्राइड ग्रेप्स, एक होता है मुनक्का। मुनक्का में अंदर बीज होता है। दैट मुनक्का you soak in the water, and in the morning you drink that water, and also the munakka, chew it properly. And second thing is अंजीर। 2 पीस अंजीर आप भिगा के रखो 4-5 घंटे, आप इसको इवनिंग स्नैक्स ले लो, तो अंजीर will also help you. Third thing is गुलकंद, which धनिया मैम, ग्रीन लीव्स और ड्राई धनिया, ड्राई जो धनिया का सीड्स होता है ना, मीनाक्षी बट, जो धनिया के सीड्स होते हैं, दिस इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर योर थायराइड डिजीज़। धनिया सीड्स, गोल गोल धनिया, तो जो समोसे के अंदर होता है धनिया, मेरे पास नहीं है यहाँ पे, नहीं तो मैं लिंक में या कमेंट्स में आपको लिंक भेज दूँगी या पिक्चर भेज दूँगी फॉर मीनाक्षी बट। सो मुनक्का,
अगर आपको ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन है, आप क्या करें? कॉन्स्टिपेशन के लिए आप गुलकंद, अगर आप डायबिटिक नहीं हैं, आप गुलकंद खा सकते हैं। गुलकंद बहुत अच्छा भी लगता है, गुलकंद बहुत मीठा भी लगता है, और गुलकंद से छोटे बच्चों को आप गुलकंद दे सकते हैं। अगर छोटे बच्चों को कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन में बहुत ज़ोर लगता है टॉयलेट में, जिसकी वजह से पाइल्स हो सकती है, तो गुलकंद आप बच्चों को दे सकते हैं। आप हनी इज़ अ माइल्ड लेक्सेटिव, आप हनी दे सकते हैं बच्चों को। 1 साल से ज़्यादा बड़े बच्चों को, 1 साल से छोटे बच्चों को हनी नहीं देना चाहिए। तो एक और चीज़ है लस्सी। हम लोग क्या करते हैं, मोटा मोटा दही खा लेते हैं दिन में, रात में, सुबह शाम, और ये सब हो जाता है हमको दही मॉर्निंग में हम खा सकते हैं एज अ ब्रेकफास्ट में हम दही खा सकते हैं। हमको दिन में एक लस्सी बनानी चाहिए। लस्सी कैसे बनानी चाहिए, मेरा एक वीडियो है हिट्स एंड ट्रायल्स पे भी, मैंने उनको उसमें बताया है लेक्सेटिव लस्सी कैसे बनानी चाहिए। लस्सी में बहुत सारी चीज़ें डाल के लस्सी बनानी चाहिए, जो हमको भारी खाना खाने के बाद उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। मैं अक्सर बच्चों को बोलती हूँ, कश्मीरी बचा है आज तक रोगन जोश खाने के बाद, क्योंकि हम दही, लस्सी ये सब इंक्लूड करते हैं अपने फूड में। तो लस्सी बनानी चाहिए, उसमें धनिया भी डालना चाहिए, रोस्ट किया हुआ और घर का ग्राइंड किया हुआ। आई एम सॉरी फॉर ऑल दीज नॉइजेज़, आई लव टू बी अराउंड द नेचर। मैं घर के धम में नहीं बैठ पाती हूँ, आई एम वेरी मच सॉरी, प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी, अभी ठीक हो जाएगा। तो घर के इसमें रोस्ट किया हुआ धनिया, जीरा, ये सब एक रोस्ट करके, इसको ग्राइंड करके एक इमाम दस्ते में ग्राइंड करके आप रख दो। धनिया, सौंफ, जीरा, हींग, ये सब आप उस लस्सी में डाल दो। सौंठ थोड़ा सा हींग डाल दो उसको। बढ़िया से, मेरी एक रेसिपी है, अगर आपको समझ नहीं आया आप वो देख सकते हैं। उसको बढ़िया से, आपको जब गैस होती है खाने के बाद, अंदर जंग चल रही होती है खाने के बाद, बहुत लोगों को होती है ये, आप वो लस्सी आप पी सकते हो, मगर लस्सी गटक के नहीं पीना। लस्सी आप खाने के आधे घंटे बाद पीना, और उसको आराम से पियो, धीरे धीरे करके पियो। आपकी ब्लोटिंग ठीक हो जाती है। कई लोगों तो उसी टाइम लस्सी का ग्लास रखते हैं और भागते हैं टॉयलेट। जिसको मैंने ये बताया है आज तक, उन्होंने मुझे फिर मैसेंजर में फ़ोन करके बोला है कि इससे फ़ायदा हुआ है हमको। तो थर्ड थिंग इज़, हाँ, हाई फाइबर फूड मैंने बताया। और एक बहुत ही चमत्कारी एक फूड है पपाया। Papaya contains the enzyme papain. Papain is the enzyme जो हमारी गट में भी होता है, जो हमारे स्टमक में भी होता है, जो प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करता है। कितना भी आपने प्रोटीन रिच फूड खाया है, कितना भी आपने हाई प्रोटीन खाया है, ये जो पपाया है, कच्चा पक्का दोनों, ये दिस हेल्प्स इन डाइजेशन. You should include those who are having piles, fissure, fistula, they should include papaya in their diet. I have created a recipe, I will tell you here, I have not shared on my YouTube yet. I have created a recipe with raw papaya. I will tell you that is very very beneficial. You need to cut the raw papaya, कच्चा पपीता जो होता है उसको कट करके ग्रेट करो, जैसे हम मूली की चटनी बनाते हैं वैसे उसको बनाना होता है, बट इट नीड्स टू बी स्टीम्ड फर्स्ट. इसको स्टीम करो. तो स्टीम करने के बाद इसको ग्रेट करो. ग्रेट करने के बाद, दिस इज़ द वे आई क्रिएटेड इट ईयर्स एगो. हमारी फैमिली में भी कुछ बंदे सफ़र कर रहे थे इस चीज़ से, तो आई वॉज ऑल्सो सफरिंग. तो दिस थिंग हेल्प्ड मी अ लॉट, दिस थिंग हेल्प्ड अस अ लॉट. तो इसको हमने ऐसे क्रिएट किया कि इसको हम रेगुलरली खा सकें. अगर खाने के साथ या खाने के बाद या खाने से पहले वी यूज्ड टू हैव अ बोल ऑफ ग्रेटेड पापाया विद योगर्ट. तो उसमें यही सब मैं जो अभी मैंने मसाले बोले, शेयर द रेसिपी पोस्ट दिस सेशन. या श्योर आई विल शेयर. राइट, papaya is best, absolutely. Papaya is best because it contains those enzymes which help in the digestion of protein. It aids your digestion, it aids your good gut health. So banana, you should also eat banana. One more thing is, we should, if many of you can do it as a medicine, तो आप कर सकते हैं. आप जब दही जमाते हैं, दही जमाने के टाइम आप उसमें कुछ किशमिश डाल दो, रेजन्स. दही जमाते हुए आप इसको दूध में, जब ल्यूकवार्म वाटर में जाग डालते हैं, जामन डालते हैं, उसमें आप कुछ किशमिश डाल दो. फिर आप उसमें जामन डालो, फिर उसको बहुत देर तक हिलाओ.
और उसके बाद ये वाला दही आप जमाओ। इसमें जो किशमिश अपने आप में बनता रहेगा, फूलता रहेगा। नेक्स्ट डे आप इसको खाओ एज अ मिड डे मील, एज अ इवनिंग स्नैक आप इस दही को। दिस विल बी सो बेनिफिशियल फॉर योर गट हेल्थ। इससे आपकी गट हेल्थ बहुत अच्छी हो जाएगी। इससे आपके पाइल्स, फिशर, फिस्टुला में बहुत हेल्प हो जाएगी इस वाली। होप यू ऑल रिमेंबर। और आप इस चीज़ को नोट करके रखो, ये सारी चीज़ें एक डॉक्टर नहीं बताएगा। So the additional food or medicinal foods, I will talk about more foods. The third thing, the next thing is त्रिफला। आप लेग्जेटिव्स लेते हैं, आप बहुत सारे लेग्जेटिव्स बाज़ार में अवेलेबल है, आप उनके सहारे आप पॉटी जाते हैं, मगर मैं बोलूँगी आप त्रिफला लो। त्रिफला मीन्स तीन फला, 3 फला, आंवला, बहिड़ा एंड हरड़। आंवला is good for your eyes, it's good for your skin, it's good for your gut। बहिड़ा और हरड़ 3 चीज़ों का मिश्रण है ये। हरड़ तो पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान यहाँ चला जाता है, हमारे राजस्थान से यहाँ रहता ही नहीं, बिकॉज दे आर मीट, हरड़ इज़ नोन एज अ मीट टेंडराइज़र। सेम वे पपाया, जो रॉ पपाया होता है उसका पेस्ट बड़े बड़े होटल्स में कबाब्स और इसमें मीट टेंडराइज़र होता है। वो जब वो मीट को टेंडराइज़ कर सकता है, हमारी पायल्स को नहीं टेंडराइज़ कर सकता है, तो थोड़ी सी अकल लगानी पड़ती है। यहाँ पे हमको भगवान ने बुद्धि दी है, तो हम ये कर सकते हैं। हम त्रिफला को, बहुत सारे लोग बोलेंगे इसको उबालो, बहुत उबालो, फिर छानो, फिर पियो। कुछ नहीं करो, बस त्रिफला 2 चम्मच ले लो, गिलास में घोलो। इतनी शक्ति नहीं सब में होती है कि त्रिफला पीने के बाद वो ब्रेक डांस ना कर सके, क्योंकि वो इतनी जिंग देता है इंसान को। त्रिफला लो, थोड़ा लीकवार्म वाटर लो, उसको घोलो और घटक जाओ, बस दम लो, अपने डीप ब्रीदिंग करते रहो। उसको नहीं आपको प्यार से पीना है, उसको आपको ऐसे ही पीना। इट शुड क्रिएट प्रेशर इन यू। तो थर्ड इज, नेक्स्ट इज देयर इज़ अ, आई विल टेल यू दैट लेटर। फर्स्ट वील डिस्कस ओनली दिस प्रिवेंशन। तो आई हैव रिटन द पॉइंट्स, वट एवर जो भी मेरे दिमाग में आता है लाइव से पहले मैं लिख के रखती हूँ। तो एलोवेरा और आंवला का जूस, अब एलोवेरा में बहुत ये होता है, फाइबर होता है, एलोवेरा बहुत अच्छा होता है, बहुत सारे उसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं। मैंने एक वीडियो बनाया है यूट्यूब में, एलोवेरा जूस कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं घर में, क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। तो इवन यू कैन टेक दैट एट होम ऑल्सो, बट आई विल नॉट सजेस्ट, प्रोसेस्ड ही लेना चाहिए। तो बाबा रामदेव जिंदाबाद। तो हेल्थ बार जैसे सेसमी सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, ये इंक्लूड करनी चाहिए अपनी डाइट में। दैट रेसिपी ऑल्सो आई हैव शेयर्ड। एंड वन मोर बेनिफिशियल थिंग इन दिस कंडीशन इज़ टू रिलीव अस ऑफ द पेन, इन्फ्लेमेशन, इज़ सिट्स बाथ। सिट्स बाथ मीन्स यू हैव टू सिट नाउ। आपका टाइम है रिलैक्स करने का। यू हैव टू सिट विद योर नॉट योर फ़ोन, नथिंग, माइंडफुलनेस के साथ आपको एक बकेट में। जनरली बहुत लोगों को पता नहीं है, सिट्स बाथ के लिए एक स्पेशली डिज़ाइंड ये आता है, ऐसे बोल जैसा आता है, जो आप अपने कमोड में फिट कर सकते हैं। तो दैट थिंग यू कैन फिक्स इन योर इंग्लिश कमोड, तो वो बहुत बेनिफिशियल रहता है। इफ़ समबडी वॉन्ट्स द लिंक, आई कैन सेंड यू, और यू कैन सर्च ऑन अमेज़ोन। तो अमेज़न पे वो मिलता है, 500, 400, 500 रुपये का मिलता है, ज़िंदगी भर के लिए आराम हो जाता है। और सिट्स बाथ से क्या होता है, आप उसमें नमक डाल सकते हैं, आप उसमें बेटाडीन डाल सकते हैं। तो 2 चीज़ें हैं, आप डाल सकते हैं, बेटाडीन और सॉल्ट। उससे आप सिट्स बाथ रख सकते हैं। वो इस एरिया की इन्फ्लेमेशन को कम करेगा, वो इस एरिया की जो टाइटनिंग है वो कम करेगा और आपको बहुत आराम देगा, जिसको भी ये है। आप लोग बड़े कंजूस होते हो, देखते हो, मगर आप शेयर नहीं करते हो। शेयर ज़रूर किया करो इस वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे वीडियोज़, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुँचे। इन्फॉर्मेशन सबके पास है, मैं फिर बोलती हूँ, मगर ये रिमाइंडर होता है, रिमाइंडर, जस्ट एज अ रिमाइंडर। So there are some yoga practices. There are some yoga practices which are very beneficial for this condition. I cannot show you right now, but I'll tell you. If most of you know the name of Mandukasana, one day Sanjay Bhaiya had shown you practically what Mandukasana is. But we need to, when does a yoga practice get effective? ऐसे नहीं इफ़ेक्टिव होता है योगा। आपने सैम्पल आसन कर लिए और आपने बोला मुझे फ़र्क नहीं पड़ा, इससे योगा क्या हुआ? When does it get effective? When you hold a particular position. If you are not holding a particular position, that there is no use.
कोई इफ़ेक्ट नहीं हो रहा है, ये तो ऐसी बात है। पानी आप उबालने के लिए रखते हैं गैस पे, उसको कितना टाइम लगेगा, उसको बॉइलिंग पॉइंट पे लाना है, उसको बॉईल करना है, उसको तो कुछ टाइम लगेगा बॉइलिंग करने के लिए, उस कंडीशन तक लाना है, उस कंडीशन तक हमें कोई भी योगा आसन होल्ड करना होता है। मैं फिर बोल रही हूँ कि हमारी बॉडी में ही, आवर बॉडी हैज़ द एबिलिटी टू रिपेयर इटसेल्फ, हर एक कंडीशन को हम ठीक कर सकते हैं, प्रोवाइडेड वी फॉलो ऑल द नॉर्म्स, वी फॉलो ऑल द रूल्स। तो मंडूकासन you do, the pavan mukht asana you do, but hold it for 10 minutes. You can hold it for 10 minutes. Hello Gunjan, welcome to this show. So you can hold this asana for almost 10 minutes. हो जाता है। अपना हनुमान चालीसा लगा के रखो, अपना कोई भजन लगा के रखो एंड होल्ड इट। बोलो जब मेरे पास कोई कंडीशन नहीं है, भगवान मुझे इसी पोजीशन में रहना है 10 मिनट्स के लिए, तो मुझे रहना है। उस टाइम ये सोचना चाहिए कि मुझे अपना डॉक्टर को दिखाने से अच्छा है मैं घर में ही ठीक करूं अपने हाथ से। तो फिर प्रेशर पॉइंट से हम हिंदुस्तानी चूड़ियाँ पहनते हैं औरतें, तो देयर इज़ अ रीज़न फॉर एवरीथिंग, वी पंचर आवर ईयर्स, ये बहुत, देयर इज़ अ रीज़न फॉर एवरीथिंग इन इंडिया। तो दीज चूड़ियाँ जहाँ पे है, दीज आर द प्रेशर पॉइंट्स फॉर द पायल्स। पहले ज़माने में होता ही नहीं होगा ये सब, तो यू कैन जस्ट ये प्रेशर पॉइंट्स आप दबा सकते हैं दोनों हाथों में। दिस विल रिलीव यू, जब बहुत ज़्यादा पेन होती है, ब्लीडिंग होती है, दिस विल रिलीव यू ऑफ द पेन। अब मुझे नहीं पता, एक पेड़ होता है उसको बकायन बोलते हैं, मुझे पता नहीं है वहाँ होता है कि नहीं होता है जम्मू में। उसमें छोटे छोटे फल लगे होते हैं बेर के जैसे, मगर वो बेर नहीं होता है, उसके पत्ते, या इसको यहाँ पे बंगाली में घोड़ा नीम बोलते हैं, बकायन हिंदी में बोलते हैं। तो उसके पत्ते, उसका वो फल बहुत यूज़फुल होता है इसके लिए। अगर ये सब चीज़ें त्रिफला से मिल सकती हैं आपको, और ये सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी। अर्शकल्पवटी एक आती है आयुर्वेदा में, किसी की भी ले सकते हैं। मुझे पतंजलि पे विश्वास है, तो मैं आई यूज़ पतंजलि प्रोडक्ट्स ऑलमोस्ट ऑल थ्रू आउट। जितने भी प्रोडक्ट्स जो नहीं होते हैं उसके पास अवेलेबल, तो मैं वो वाले नहीं लेती हूँ, रेस्ट मेरे घर में सब पतंजलि का ही आता है। तो अर्शकल्पवटी, उसमें हर एक इंग्रेडिएंट है इसका, तो यू कैन टेक दैट ऑल्सो। तो ये सब मिली जुली प्रैक्टिस से, एक्सरसाइज से, वाटर के इंटेक से हमारी ये कंडीशन काफ़ी हद तक ठीक हो जाती है। फिर सेतुबंद आसन है, आसनास, ये सर्च आसनास, सेतुबंद आसनास है, प्राणायाम है, दैट हेल्प्स इन हीलिंग। जो अनुलोम विलोम प्राणायाम होता है, कपालभाति होता है, वाह्य प्राणायाम होता है, दैट हेल्प्स इन हीलिंग, दैट हेल्प्स अस इन आवर इंटरनल हीलिंग, दैट हेल्प्स इन आवर रिजुविनेटिंग आवर सेल्फ। आवर बॉडी हैज़ द एबिलिटी टू रिपेयर आवर सेल्स। में हर एक सेल रिपेयर होती है, हमारी बॉडी की एक एक सेल रिपेयर होती है, रिपेयर होने की ताकत रखता है हमारी बॉडी। So with this thought, with this session, with this one more session of reminder, I'm just giving you a reminder. You all know what to do. I think time is over already. Yes, time is over. I have been sitting here for about 50 minutes now. 50 minutes में बैठती नहीं हूँ. I have a habit of moving around, so you too have a habit of moving around. दिन में ना सोएं, दिन में क्यों सोना है, दिन में खाना खाते ही मत सोएं। दिन में आप गर्म पानी पिए, आप पानी घूंट घूंट करके पिए, और आप गर्म पानी का गिलास हमेशा अपने साथ रखें। गर्म पानी ही पीते रहें सारा दिन। अभी सर्दियां हैं, गर्म पानी पीने से ही सारा दिन, आप एक एक घंटे के बाद गर्म पानी, आपको पता ही नहीं चलेगा आपका वेट भी कैसे कम हो गया, और आपकी पाइल्स भी कहाँ चली गई, आपका फिशर फिस्टुला भी कहाँ चला गया। फिस्टुला एक ऐसी कंडीशन है, वो टनल जैसा बना देता है, और वो अगर आपका कंडीशन ज़्यादा बढ़ गया, दैट पस फॉर्मेशन होता है उसमें, अगर आपका कंडीशन ज़्यादा बढ़ गया, ज़्यादा डीप हो गया, प्लीज़ शो इट डॉक्टर, सो दैट इस कंडीशन में वो बहुत डीप जा सकता है, आपकी यूरिनरी ब्लैडर तक वो जा सकता है, वो इतनी बड़ी टनल बना सकता है, आपको पता ही नहीं चलेगा कब आपका यूरिनरी ब्लैडर और फिस्टुला एक हो गया। तो इसके लिए आप ज़रूर डॉक्टर के पास जाए, उनका परामर्श ले, मगर ये रियकर न हो जाए। सर्जरी के बाद रियकर होता है, 3-3 4-4 बार लोगों का रियकर हो जाता है, तो रियकर न होए, इसके लिए जो प्रैक्टिस है, आयुर्वेदिक प्रैक्टिस है, शार सूत्री, आई एम नॉट प्रमोटिंग हेयर आयुर्वेदा, बट
we are Indians, we should believe in Ayurveda, we should believe in our practices. We should not say that these are alternative practices, these should be the main practices. तो जो शार सूत्री है, they use a thread, with the help of the thread they tie that area, और वो एकदम पहले की तरह हो जाता है, and reoccurrence का कोई चांस नहीं रहता है इसमें. सेम विद द फिशर एंड फिस्ट फिशर और पाइल्स, तो ऐसे ही ये सब प्रैक्टिसेस से ही ठीक हो जाती है. और अगर आपको कोलाइटिस है, आपको दही और अनार, खजूर, ये सब चीज़ें आप अब इंक्लूड करेंगे अपने डाइट में. अनार इज़ द बेस्ट मेडिसिन फॉर दैट. अनार आप चबा चबा के खाएंगे, एक दिन में ज़रूर एक बार खाना. और लस्सी इसी तरीके से खाएंगे. मोटा दही नहीं खाना है, लस्सी खानी है, यस खानी है, पीनी नहीं है. कुछ भी चीज़ आज से पीना नहीं है, आज से सब कुछ ही खाना है. तभी जब हम सब कुछ खाएंगे, पीने वाली चीज़ भी खाएंगे, तभी हम इन सब चीज़ों से छुटकारा पा सकते हैं. और मैं कहती हूँ पूरा क्योर होगा, सिर्फ कंट्रोल ही नहीं होगा, पूरा क्योर होगा. बट वी हैव टू फॉलो ऑल द प्रैक्टिसेस. सर्वे भवन्तु सुखिनाम, सर्वे संतो निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग्वे. वासुदेव कुटुम्बकम. सब सुखी रहें, सब स्वस्थ रहें. और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें अपनों के साथ. अगर कोई इस कंडीशन में है तो प्लीज़ शेयर द वीडियो विद योर ओन लाउड वंस. इफ़ यू केयर फॉर योर लाउड वंस, please share this valuable information. Your doctor cannot give you so much of information in at one point. इतना नहीं समझाने आते हैं आपके डॉक्टर. हालांकि डॉक्टर हमारे भगवान होते हैं, they try to explain us various things, मगर उनको भी समझ आता है ये बंदा करने वाला नहीं है. बहुत ज़्यादा सिगरेट स्मोकिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अल्कोहल पी रहे हैं. मत पियो यार, ये बहुत गंदी चीज़ है. छोड़ दो इसको, छोड़ो. आप एक एक घूंट के साथ सोचो मैं अपनी बच्चों का खून पी रहा हूँ, और छोड़ो इसको. और आप ये भी सोचो कि ये मेरे को अंदर क्या दे रहा है. बहुत सारे लोग तर्क भी करते हैं, मैं 70 साल का हो गया, मैं 80 साल का हो गया अभी तक. आप अपनी जीन्स को रेक्टिफाई करो. हम अपनी सिंस आई एम कैरिंग द जीन्स जिसमें डायबिटीज़ भी है, हाई बीपी भी है, बट आई एम लिविंग माई लाइफ लाइक अ डायबिटिक. आई डोंट हैव डायबिटीज़ बट आई लिव माई लाइफ लाइक अ डायबिटिक. क्योंकि मुझे अपनी जीन्स का सुधार करना है इसी जन्म में. मुझे अपनी जीन्स मैंने तो अपने बच्चों को दे दिए हैं, मगर मेरे बच्चे अपने बच्चों को ना दे, इसलिए मुझे अपनी जीन्स को रेक्टिफाई करना है. आप सिगरेट पीना छोड़ दो, क्योंकि आप अपनी जीन्स की जब म्यूटेशन हो सकती है जीन्स में, जब सडन चेंजेस हो सकते हैं जीन्स में, जब इतने वायरसेस आ सकते हैं, तो क्या ठीक नहीं हो सकता है इंसान. अभी दूसरा आ गया है महाशय ओमाइक्रॉन, अभी उससे लड़ना है. तो अपनी आदतें सुधारो, आदत बदलो, जीवन बदलो. होप आई एम नॉट had been not too much harsh. मगर जब इंसान कर सकता है, when a person can bring change, though we should bring a change in our lives. हम अपने घर में खाना बनाएं, जहर न पकाएं. हम अपने घर में खाना बनाएं प्यार से, तो अपनी जो हमारी बच्चे हैं वो भी सीख जाएंगे कैसे खाना खाना है, किस तरीके से पानी पीना है. जब हम ही गलत तरीके से उनको खाना परोस के देंगे, खाना बना के देंगे, हाँ स्पाइसी फ्राइड ये भी ठीक ही है, चलो ठीक है माना, हफ्ते में 1 दिन 2 दिन, मगर our life is too precious to surrender to our taste buds. Our tongue is our best friend, our taste buds are our best friends, but at times they become our strongest enemies also. With this thought, taking leave from all of you. Thank you so much for watching me live, and please share the video, share this information with your loved ones. With the women who do not come up, who do not disclose in their family, I have come for them live. I have also told that I have reversed my condition. You too can reverse your condition with this simple tricks, which is highly manageable and under your control in your home, within your home. Thank you so much.